Good afternoon, dear students. This is BST class 11th. Students, today we will start next chapter, next unit number 10, International Business. Students, in this chapter, we will cover these main topics. First of all, meaning, nature, benefits, and scope of international business. Okay. Second thing, import trade, meaning, procedure, and documents of import trade. And then meaning, procedure, and documents of export trade. And at last, meaning, features, objectives, and functions of World Trade Organization, WTO. Okay. So today we will start from first topic, international business. So let's start. First topic of unit 10. Yes, international business. First of all, meaning of the international business. Students, it refers to business activities taking place between countries. Means any one person cannot fulfill all his needs by his own sources. He has to exchange the goods and services with other person. है ना? Same manner, in same manner, a country can't fulfill all its need or requirement by its own sources, or it has depend on other countries. है ना? So this dependence of one country upon another is mainly due to unequal distribution of natural resources. है ना? So any country can produce any product only as per the natural resources available in the country. So the product produced in this manner are first consumed internally in a country and excess is sold to other countries. जो भी कंज्यूम होता है वहाँ अपने एरिया में, अपनी कंट्री में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरनली जो उनकी जो कंजम्पशन है वो कंप्लीट करते हैं. आफ्टर देन जो भी एक्सेस में बच जाता है वो बाकी दूसरी कंट्रीज को सेल कर दिया जाता है. तो फॉर दिस सेल इन एक्सचेंज, है ना, इसी को कहते हैं ना एक्सचेंज. सो द कंट्री परचेजेस द प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल इन plenty in that country. So the demand and supply is thus balanced. इससे demand और supply balance बनी रहती है. So this business taking place between the two countries is called international business. Okay, जो दो countries के बीच में लेन देन होगा, ठीक है, तो that is called international business, right? Next topic is nature, means main features of the international business. So first point is involvement of two countries. So minimum two countries are required to make international business, okay, to make meaningful or successful. And international business is possible only when there is business transaction happen between two countries. Okay, business transaction होनी जरूरी है. Second is the many bases. There are many bases which help to make this business possible, like unequal distribution of natural resources. Because of this unequal distribution of natural resources, no country is self-dependent. क्योंकि कहीं किसी कंट्री में कोई चीज बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री में दूसरी चीज बहुत ज्यादा है ना, तो इसीलिए हर कोई कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, और ना ही हर कंट्री में हर चीज प्रोड्यूस की जा सकती है. सो इट हैज टू टेक द हेल्प ऑफ सम अदर नेशन. इसीलिए दूसरी कंट्रीज की नीड हेल्प लेनी जरूरी है. सो इन द सेम वे वेरिड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंकरेज इंटरनेशनल बिजनेस. बहुत सारे बेसिस हैं इसके. ओके, थर्ड इज द लैंग्वेज डिफरेंस. So every country has its own different languages, so it is mandatory for the successful businessman to know the language of different nation. अगर कोई भी बिजनेसमैन को किसी और कंट्री से बिजनेस करना है तो वहाँ की लैंग्वेज को आना समझना उसको बहुत जरूरी है. सो डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज इज द मेन फीचर ऑफ द नेचर ऑफ दिस बिजनेस. ठीक है, नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस. अगर आपको लैंग्वेज में दिक्कत आएगी तो आप उस इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. एंड देन फोर्थ पॉइंट इज अ कंपैरेटिवली मोर रिस्की. कंपैरेटिवली इंटरनल ट्रेड, इंटरनल मींस डोमेस्टिक ट्रेड, जो भी आपकी कंट्री विद इन कंट्री आप जो आप करते हैं ट्रेड. इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स मोर रिस्क.
इन कंपैरिजन, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिस्की है। सो द मटेरियल कम्स फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस, बहुत दूर से आता है मटेरियल, एंड मे बी ये सी रूट भी हो सकता है इसमें। सो द ग्लेशियर्स, वेव्स, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, वेदर वगैरह ऑफ द सी कैन कोज ग्रेट हार्म टू द मटेरियल। इसकी वजह से मटेरियल हार्मफुल, मतलब कुछ भी किया हो सकता है। आपको पता ही है कि सी के थ्रू, समुद्र में इतना कुछ होता है, तो कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, उसमें रिस्क बहुत रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरनेशनल बिजनेस इज टोटली मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रायर अप्रूवल जो है ऑफ द गवर्नमेंट इज नीडेड बिफोर सेल एंड परचेज। आप फॉरेन कंट्री के साथ कभी भी कोई सेल परचेज करनी है तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी है, या फिर आप इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर अप्रूवल करवाना है, अप्रूव करवाना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइसेंस ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसके लिए लाइसेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, और मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स, इज अ पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। Every country has its own different currency. So arranging foreign currency is one of the most important feature of this kind of business. Okay. So next topic, benefits of international business. We can describe with two ways, benefits of international to nation and benefits of international business to firms. Okay, first of all, to nation. First point is earning of foreign exchange. Students, foreign currency or foreign exchanges is very important for every country, because valuable foreign exchange can be earned by international trade. इससे valuable foreign exchange को earn किया जाता है ना, जैसे डॉलर्स हैं या फिर पाउंड्स हैं, तो इनको भी यहाँ हम फॉरेन एक्सचेंज, अगर हम इनके साथ बिजनेस करते हैं तो इस तरह की करेंसी हमारी इंडिया में आती है। सो द बाय एक्सपोर्टिंग मोर देन रिक्वायर्ड, गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी procured, and the more the foreign exchange with the country, more well off that country will be, ठीक है। Next, second point is the more efficient use of resources. Due to international business, maximum utilization of natural resources is possible. Each producer will produce only those products which will give him the maximum profit. Mostly क्या होता है कि हम लोग उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर बनाते हैं जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है. So this process is not only beneficial for an individual producer, this means international business, but for a country also. ये international business से प्रोड्यूसर के साथ साथ कंट्री को भी बहुत बेनिफिट होगा. By doing so, the goods which were being manufactured at higher cost now can be procured from other countries at a lower cost. जो कि हम अगर खुद बना रहे थे या बनवा रहे थे अपनी कंट्री में तो वो हाई कॉस्ट पे बन रही थी, तो वही आप बाहर की किसी कंट्री से अगर आप वहाँ आप अपना मटेरियल बेचते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट बन के आते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है बाहर की कंट्रीज में, तो उसमें कॉस्ट जो है वो बहुत कम रहेगी. सो द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन ऑल्सो बी अचीव्ड इफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड रेपिटेडली एंड सोल्ड इट इन द मार्केट. अगर आप बार बार वो चीज काम करवा रहे हैं बाहर किसी कंट्री से, तो वहाँ स्पेशलाइजेशन का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं. ठीक है. Third point is the improving growth prospects and employment potential. With the help of international business, machinery, raw material, and modern techniques are imported and industrialization is encouraged. Means ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट ही आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स के साथ साथ रॉ मटेरियल, मशीनरीज also we can import or export. So it further helps in improving growth prospects and also create opportunity for employment of people. Okay, main examples जो अभी तक proof हुए हैं, that is Singapore, South Korea, China are the star performer on the world map by improving growth prospects and employment potentials. Okay, next fourth point is the increased standard of
living. So this business makes the better goods produced in other countries available for consumption. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ से इंक्रीज होगा क्योंकि बाकी जो बाहर की कंट्रीज हैं वो भी बेटर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं. The people of other countries enjoy a higher standard of living. वहाँ के लोग भी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट, बेनिफिट्स टू फर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, prospects of higher profit. International business is more beneficial than the domestic business. अब डोमेस्टिक तो आपका कंट्री के अंदर ही होता है पर्टिकुलरली, है ना. मीन्स डोमेस्टिक प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा हाई नहीं रख सकते हैं, लो रखने पड़ते हैं. एंड द फर्म कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द कंट्री वेयर प्राइसेस आर हाई. जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पर उस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा रेट पे, ज़्यादा प्राइसेस पे भी सेल कर सकते हो. ठीक है, इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. जबकि डोमेस्टिक में यानी कि अपने ही कंट्री में आपको हो सकता है कि उसके प्राइसेस कम रखने पड़ रहे हैं. ठीक है. देन सेकेंड इज इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. Firm who have surplus production capacity can play overseas expansion. So in this way, on the other hand, they can utilize their idle production capacity. Idle production capacity means suppose अगर किसी बिजनेस की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है कि वो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर उनकी वो सप्लाई वगैरह जो है पूरी कहाँ करें. मीन्स बहुत ज्यादा एरिया उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ वो सेल कर सकते हैं. तो इसीलिए वो अपनी उतनी ही कैपेसिटी उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना वो अपने आसपास के एरियाज में यूटिलाइज करवा पा रहे हैं. सो इंटरनेशनल बिजनेस के केस में क्या हो सकता है कि लार्ज स्केल पे अगर वो प्रोड्यूस करते हैं तो एक बल्क प्रोडक्शन जो उन्होंने की है वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो अपनी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज की जा सकती है. ठीक है. सपोज अगर उनके पास फिक्स्ड फैक्टर बहुत सारे हैं, फिक्स फैक्टर में जैसे कैपिटल है, लैंड है, बहुत सारे मशीनरीज हैं, प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन वो सबको प्रॉपर यूटिलाइज उनका नहीं कर पा रहे थे. और अब वो अगर वो चाहते हैं कि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके वो बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो अपनी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ. International business is a good option for the firms whose products start getting saturated in the local market. These firms can considerably improve prospects of their growth by entering into overseas market. Means growth इसमें international business से बहुत ज़्यादा है. ये भी इसमें ऑप्शन है. जो लोकल मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट था वो अब आपका इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो वहां पर आप कंपटीशन में भी आते हैं और इससे ओवरऑल पूरी मार्केट का भी ग्रोथ होती है, मार्केट की भी ग्रोथ होती है जैसे जैसे प्रोडक्ट्स वहां पर इंक्रीज होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट इज वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट. डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपटीशन तो है ही है, बट उससे अलग जाके भी आप इंटरनेशनल लेवल पे भी टफ कंपटीशन दे सकते हैं. ठीक है. तो बेटर ये है कि लोकल मार्केट में कंपटीशन को फेस करने से बेटर ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस सीम्स टू बी ओनली वे टू मेंटेन देयर पोजीशन इन द मार्केट. आपकी एक अच्छी पोजीशन बन जाती है, मेंटेन करते हैं आपकी मार्केट में कोई पोजीशन इसमें मेंटेन हो सकती है आपकी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन. मेनी फर्म्स एम एट गेटिंग गुडविल इंटरनेशनली. हर कोई चाहता है ना कि उसकी इंटरनेशनल लेवल पे उसकी अच्छी गुडविल हो, हर कोई उसकी एक अच्छी सी पहचान हो. ठीक है ना. उसको कोई आइडेंटिफाई कर पाए. सो फॉर दीज फर्म्स इंटरनेशनल बिजनेस इज ओनली वे टू अचीव देयर टारगेट. इससे वो इजीली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट हेडिंग इज स्कोप ऑफ इंटरनेशनल business. Scope of international business is expanding rapidly. Exporters used to export the finished goods which they had purchased from their own country. Nowadays, the scope of international business is not just limited to export import, but it is expanding. ये सिर्फ एक export import तक ही limited नहीं रह गया.
ये बहुत आगे फैल रहा है. So the scope of international business is includes first of all trading. By trading we mean export or and import of goods. Trading is business है ना, लेन देन करना, तो goods को बेचना या फिर मंगवाना. So there is a tremendous rise in this type of international transaction. बहुत बढ़ रही हैं अब ये ट्रांजेक्शन के बाहर की कंट्रीज के साथ लेन देन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. So the units which are established for this purpose purchase the goods for further selling. वहां से गुड्स खरीद के ना हम किसी और कंट्री में भी सेल कर देते हैं. इस टाइप का भी बिजनेस बहुत इंक्रीज हो रहा है. In India, export houses, star trading houses, and super trading houses do the same manner. Means किसी एक कंट्री से मटेरियल परचेज किया और किसी और कंट्री में उसको सेल कर दिया. मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले खुद के यूज करने के लिए हम मंगवा रहे हैं, हम आगे सेल करने के लिए भी कहीं से गुड्स मंगवा सकते हैं. ठीक है. In Japan, international trading house do trading on a large scale. वो भी ऐसे करते हैं. ठीक है. Second is the services. The role of services is increasing in international businesses. इसमें कैटेगरीज है लाइक टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी एंड काउंसलिंग. ओके, इस टाइप की सर्विसेज भी इसमें इंक्रीज हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे. नेक्स्ट is manufacturing and marketing. Third point. This category includes those business establishment which export the self-manufactured product. Means जैसे MNCs है, बहुत सारी MNCs are doing business of this kind. इसमें MNCs में क्या होता है कि मेन जो हेड ऑफिस है वो आपकी अपनी कंट्री में रहेगा एंड जो ब्रांचेस है वो आप अदर कंट्रीज में ओपन करते हैं. तो वहाँ के जो बेनिफिट है, वहाँ की जो कंट्रीज की लोकल बेनिफिट्स है वो आप इसमें यूटिलाइज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज सोर्सिंग एंड मार्केटिंग. करंटली many of the MNCs are doing business of this type. जैसे कि MNCs में मैंने भी बताया कि sourcing and marketing means under this a company of one nation establish its unit in some other country and the main purpose इसके पीछे क्या है कि वहाँ की जो गुड्स हैं जो कि कम रेट पे आपको वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी चीप रेट पे, उसका हम यूटिलाइज करना चाहते हैं. सो दीज कंपनी सेल देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन सम अदर कंट्रीज. अपने ही प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे बैक टू देयर ओन कंट्री और उसके बाद फिर अपनी कंट्री में ले आएंगे एंड इवन टू द कंट्री वेयर द प्रोडक्शन यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड. ओके. फिफ्थ पॉइंट इज global sourcing for production. Those companies which import necessary material from other nation for production of goods are included under this. Means to produce finished goods in their own country, अपनी कंट्री खुद की कंट्री में ही मतलब प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब जो फाइनली अपनी फिनिश गुड्स अपनी कंट्री में लेके आना है, तो नेसेसरी मटेरियल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सिर्फ हमें रॉ मटेरियल या फिर जैसे कुछ बना हुआ मटेरियल भी हो सकता है लेकिन अभी इसको फिनिश लुक नहीं दिया गया है, तो इस तरह का मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं. सो द पर्पस बिहाइंड दिस इज टू कीप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट इट्स मिनिमम लेवल. इसका मेन रीजन यही रहता है, मेन पर्पस यही रहता है कि जो कॉस्ट है उसको कम से कम किया जाए. यानी कि अगर हमें बाहर किसी कंट्री से वो चीज थोड़ी चीप रेट पे अवेलेबल हो रही है तो हम रॉ मटेरियल की फॉर्म में या किसी जैसे इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उसकी फॉर्म में भी हम गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और फाइनली अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करके फिर उसको आगे सेल कर सकते हैं. इससे हमें बस कॉस्ट कम आ रही है तो ही हम ऐसा करेंगे. ओके. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इट रेफर्स टू इनवाइटिंग फॉरेन करेंसी इन आवर कंट्री. इसका मेन ये भी पर्पस रहता है कि हम बाहर की करेंसी जो है वो अपनी कंट्री में लाना चाहते हैं, इनवाइट करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. So there are two ways of foreign investment. First is the FDI, means foreign direct investment. It refers to foreign investors investing in production activities other nation. Okay, and MNCs are good example of this. And second way is the portfolio investment. It refers to foreign investors investing in the companies of other nation. Okay, so first topic is completed now. So students, revise this topic and make notes well. Okay. Thank you students. Have a nice day.
If you have any queries, now you can ask. Raise your hand if you have any query. Raise your hand. Okay. Diksha ma'am, excuse me. Diksha ma'am,